Okay, very good morning all. Today we will discuss about the personality and 16 PF, 16 PF, 16 personality factor inventory. Okay, before going to discuss the 16 PF, first we need to understand what do we mean by personality. Personality, as you all know, it refers to the factors inside people that explain their behavior. Whenever we are discussing about the personality, we are talking directly the inside that internal factors, those internal factors that explain the behavior of the individuals. So personality is the sum total of the internal structures, internal factors. Personality has been defined by different psychologists. According to R.B. Kettles, the personality can be defined. The personality of individual is that which enable us to predict what he will do in a given situation. Simply, according to R.B. Kettles, what a person will do in a given situation is personality. So, personality is the internal structure of the individuals. We are talking about the internal aspect of the individuals that explain the behavior of the individuals. And एक व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, दैट इज द पर्सनैलिटी. और जो पर्सनैलिटी है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो आदमी की एबिलिटी है, आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनली, वो क्या है, पर्सनैलिटी है. अब कुछ फेसेट्स होते हैं जिसमें हमें पर्सनैलिटी की डेफिनेशन समझने में आसानी होती है. There are some of the facets to consider when we defining personality. वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से फेसेट्स हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिसके जरिए हम डेफिनेशंस पार्ट पर फोकस करते हैं पर्सनैलिटी. फर्स्ट जो डेफिनेशंस के फैक्टर्स हैं वो क्या बताते हैं, इंडिविजुअल्स आर यूनिक, एवरीवन आर इन द वर्ल्ड, एवरीवन इन द वर्ल्ड आर यूनिक. हम हर कोई यूनिक हैं, हर कोई अलग हैं. इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. हर कोई व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करता है. जब भी हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, पर्सनैलिटी में हम दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हर आदमी जो है यूनिक है और जो इंडिविजुअल का व्यवहार है वो डिफरेंटली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में होता है. अब हमें ये तो पता है इंडिविजुअल का व्यवहार जो यूनिक है और डिफरेंट डिफरेंट करता है, फिर भी जो बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, वो क्या होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द बिहेवियर. तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस में ये तीन चार बातें जो है हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि हम इंडिविजुअल के यूनिकनेस पर फोकस करते हैं और हर एक इंडिविजुअल एक परिस्थिति में दूसरा व्यवहार कर रहा है, दूसरी परिस्थिति में दूसरा व्यवहार कर रहा है, हर परिस्थिति में वो डिफरेंटली बिहेवियर कर रहा है. इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. Although individuals are unique and they behave inconsistently across the situations. तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं, जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, हम पर्सनैलिटी के डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करते हुए अब ध्यान में रखते हैं. Now questions came in our mind that what are the methods of measuring personality, how we can
assess personality of the individuals? What are the methods through which we can assess the individuals, assess the personality of the individuals? What are those methods? Some of the methods are related to paper and pencil tests. We can assess the personality through paper and pencil test, or through paper and pencil test or questionnaires inventories. We can also estimate the personality of the individuals. Second, we can also estimate the personality, we can also assess the personality with the help of situational exercise, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी सिचुएशनल टेस्ट के जरिए भी हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं. Similarly, we can also assess the personality with the help of observations, through field study, through natural observations, what a person will do in a particular situation. Further, we can also measure the personality, assess the personality with the help of projective techniques or projective measures like TAT, WAT. These are the projective techniques. Somatic inflow series. These are the projective techniques. Dry person test. Okay. So there are many methods through which we can assess the personality of the individuals. Out of those, here we will talk about the paper pencil test, that is 16PF. We will discuss about the 16 personality factors questionnaire. What is all about 16PF? What do you mean by 16PF? क्या है 16PF? How you can understand about the 16PF? What is that? 16PF questionnaire or 16 personality factor questionnaire is a self-report assessment instrument. It is a self-report assessment instrument that measures the 16 normal adult personality dimensions. 16PF questionnaires measures the 16 normal adult personality dimensions, and that personality dimensions make up our personality. In other words, we can say that the 16PF measures the 16 dimensions of the personality, or it includes 16 factors. That is why it is also known as 16 personality factors. It has been represented by Raymond Cattell. According to Raymond Cattell, the Endeavor's 16 personality factors identify the primary component of the personality. Primary factors or primary component of the personality. What are those 16 factors? They are the primary component of the personality. These are analyzed by the factor analysis. The 16 personality factors are the primary component of the personality, which are the analyzed by the factor analysis, or which came into existence by factor analysis techniques or with the help of factor analysis. So we understand that the 16 personality factors is the 16 primary factors of the personality, or which came into existence with the help of statistical technique, that is factor analysis. It has been published by, who is the publisher of 16 personality factors?
किसने पब्लिश किया 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को? इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द IPAT. क्या? IPAT. What is IPAT stand for? IPAT. IPAT stand for Institute for Personality and Ability Testing. What is that? Institute for Personality and Ability Testing. IPAT is agency. It is a kind of agency. एक प्रकार की एजेंसी है जो पर्सनैलिटी और एबिलिटी टेस्ट को पब्लिश करती है. Whenever asked about the publisher of a particular test, we should also understand where it has been published. Who is the publisher of a particular test? So 16 PF personality factor जो test है, it has been published by the IPAT, Institute for Personality and Ability Testing. It is very renowned. You should remember this. IPAT is a renowned agency. So you should remember the name, full form of IPAT. Okay. Next, when we talk about the history of personality test, then first personality test is Woodworth personality data set. After that, there are many tests came into existence. Now we should also discuss some historical basis or historical event of IPAT. In the 1949, the Institute for Personality and Ability Testing is founded by whom? It is founded by the Raymond Cattell and his wife. IPAT जो था, it is founded by the Raymond Cattell and his wife in the year of 1949. अब आपसे पूछा जाए कि IPAT कब स्टार्ट हुआ था, या जो पब्लिशिंग जो एजेंसी थी ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये 1949 में स्टार्ट की थी रेमंड कैटल और उसकी वाइफ ने. ठीक है. और we also understand that there are certain revisions, there are some revisions of IPAT, sorry 16PF test. और जो फर्स्ट रिविजन्स था वो आया था कब? 1949 में. अब 16PF के जो क्वेश्चनेयर है 16PF, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? Where we can apply these 16PF questionnaire or 16 personality factors questionnaire? We can apply the 16PF personality factors in selection, management development, consultations, team building and development, career counseling, individual and couple counseling, and research and clinical settings. There are many applications of 16PF, 16 personality factors questionnaire. We can apply this in selection, in management development, team building and development, career counseling, individual and couple counseling, and we can also apply the 16PF in research and clinical setting. Now, what are the age required to administer, और कितनी एज होनी चाहिए जिस पे हम 16PF एडमिनिस्टर कर सकें?
16-year and older person can use 16 PF, or it can be administered on 16 years and older persons. What are the items in 16 PF? Form 1, 185 items are there in Form 1. And what will be the time to administer for 16 PF? And how much time required for 16 PF to administer on a particular individuals? The average time for 16 PF is 35 to 50 minutes. We can administer it in 35 to 50 minutes. And what are the administration's procedure for 16 PF? It can be administered in individually or group setting. 16 PF जो टेस्ट है वो इंडिविजुअल एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है और ग्रुप टेस्ट पर भी किया जा सकता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कोरिंग है 16 PF के, वो सारी की सारी चीजें हमें मैनुअल्स में डिटेल्स में देखना है कि क्या क्या मैनुअल्स के इंस्ट्रक्शंस हैं। इसकी स्कोरिंग्स जो है उसके लिए क्या होता है, हमारे सामने 4 सेट ऑफ स्कोरिंग कीज होती है। स्कोरिंग्स जब हम मैनुअल्स में देखते हैं या स्कोरिंग सीट देखते हैं तो हमारे सामने 4 स्कोरिंग सेट होते हैं। एक हमारे सामने नॉर्म्स टेबल होती है मैनुअल में, इंडिविजुअल रिकॉर्ड फॉर्म होता है। वो सारी की सारी चीजें हमें मैनुअल में आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मैनुअल को स्टडी करना पड़ेगा। अब 16 जो PF स्केल्स हैं वो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें देखने हैं। जो पहला फैक्टर्स है, ए फैक्टर्स जो है वो वार्मथ से रिलेटेड है। वार्मथ जिसका लो साइड है रिजर्व्ड और इम्पर्सनल, और हाईएस्ट साइड क्या है, वार्म, पार्टिसिपेटिंग और अटेंटिव टू अदर्स। फैक्टर बी जो है, फैक्टर बी रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग जिसमें लो साइड होता है कंक्रीट और लोअर मेंटल कैपेसिटी, और हायर साइड क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट, ब्राइटर्स और फास्ट लर्नर। थर्ड फैक्टर जो है फैक्टर सी, वो रिलेटेड होता है इमोशनल स्टेबिलिटी से। इमोशनल स्टेबिलिटी लो साइड उसका क्या होगा, रिएक्टिव, अफेक्टेड बाय फीलिंग। हायर साइड क्या होगा, इमोशनल स्टेबल, अडेप्टिव, मैच्योर। फैक्टर ई जो है 16 PF का वो डोमिनेंस से रिलेटेड है। डोमिनेंस उसका लो साइड क्या होगा, डिफरेंशियल, कोऑपरेटिव, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। हायर साइड क्या होगा, डोमिनेंट, फोर्सफुल, असर्टिव। नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइवलीनेस, फैक्टर एफ। उसका लो साइड होगा सीरियस, रिस्ट्रेन्ड, केयरफुल। हायर साइड होगा एंथुजियास्टिक, एनिमेटेड एंड। नेक्स्ट फैक्टर है जी, रूल कॉन्शियसनेस। जी फैक्टर क्या बताता है, रूल कॉन्शियसनेस। लोअर साइड बताएगा नॉन कंफर्मिंग, हायर साइड बताएगा ड्यूटीफुल, कॉन्शियस, रूल कॉन्शियस। फैक्टर एच दैट इज रिलेटेड टू सोशल बोल्डनेस, जिसका लो साइड बताएगा शाइनेस, टिमिड, थ्रेट, सेंसिटिव, और हायर साइड क्या बताएगा, सोशली बोल्ड, वेंचरिज्म, सोशली बोल्ड। फैक्टर आई रिलेटेड टू सेंसिटिविटी, लो साइड बताएगा फैक्टर आई का टफ, ऑब्जेक्टिव। हायर साइड बताएगा सेंसिटिव,
टेंडर माइंडेड। 16 पीएफ का नेक्स्ट फैक्टर विजिलेंस आएगा, जिसको फैक्टर एल बोला गया है। वो किस चीज से रिलेटेड है? ट्रस्टिंग लो साइड, हायर साइड उसका होगा सस्पिशियस। नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर एम, दैट इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्टनेस, जिसका लो साइड होगा प्रैक्टिकल ग्राउंडेड, हायर साइड होगा इमेजिनेटिव आइडिया ओरिएंटेड। नेक्स्ट फैक्टर एन, दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेटनेस, जिसका लो साइड होगा फोर्थ राइट जेन्युइन अलर्ट आर्टलेस, सॉरी जेन्युइन आर्टलेस। हायर साइड होगा प्राइवेट नॉन डिस्क्लोजिंग, जो अपनी बातों को डिस्क्लोज नहीं करेगा, डिस्क्रीट। फैक्टर ओ रिलेटेड टू अप्रीहेंशंस, नेगेटिव साइड होगा सेल्फ अश्योर्ड अनवरिड, और पॉजिटिव जो हायर साइड होगा अप्रीहेंसिव सेल्फ डाउटिंग वरिड, अपने आप में डाउट रखने वाला, अपने आप पे डाउट रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर Q1 which is related to openness to change, जिसका लोअर साइड होता है ट्रेडिशनल अटैच टू फेमिलियर, हायर साइड होगा ओपन टू चेंज एक्सपेरिमेंटिंग, हमेशा एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति। फैक्टर Q2 which is related to self reliance, which means नेगेटिव साइड इसका होगा ग्रुप ओरिएंटेड अफिलिएटिव, पॉजिटिव साइड होगा हायर साइड सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअलिस्टिक, अपने आप में सक्षम। Q3 फैक्टर रिलेटेड है परफेक्शनिज्म से, परफेक्शनिज्म। नेगेटिव साइड्स रिलेट्स टॉलरेट्स डिसऑर्डर्स फ्लेक्सिबल, हायर साइड होगा इसका ऑर्गेनाइज्ड परफेक्शनिस्ट सेल्फ डिसिप्लिन। लास्ट जो फैक्टर है टेंशन Q4, जिसका नेगेटिव साइड है रिलैक्स्ड पेशेंस, और हायर साइड होगा टेंस हाई एनर्जी ड्रिवन। तो ये क्या है? सारे के सारे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के डायमेंशंस हैं, जिनको हम 16 कंपोनेंट बोल रहे हैं। ये सारे के सारे क्या थे? 16 कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी which are the primary factors analyzed by the factor analysis or given by the Cattell. These are highly relevant in personality assessment. अब हम अगर एक चीज को देखें तो 16 पीएफ का जो पहला फैक्टर है, हमने कहा वॉर्म्थ से रिलेटेड है, जिसमें वॉर्म्थ जो है हायर साइड में और लोअर साइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमने ब्रीफ में बताया। सेकंड रीजनिंग बताया हमने, थर्ड इमोशनल स्टेबिलिटी बताया, फोर्थ डोमिनेंस, फिफ्थ लाइवलीनेस, सिक्स्थ रूल कॉन्शियसनेस, सेवंथ बोल्डनेस, एट्थ सेंसिटिविटी, नाइन्थ विजिलेंस, 10th abstractedness, 11th privateness, and 12 apprehensions, 13 openness to change, 14 self-reliance, 15 perfectionisms, and 16 tensions. तो ये सारे के सारे क्या हैं? These are the 16 factors of personality. 16 personality factors. जब भी हम किसी भी पर्सनैलिटी असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो पर्सनैलिटी असेसमेंट में हम इन्हीं 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स पर उस व्यक्ति का स्कोर हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द 16 पीएफ क्वेश्चनेयर्स। फिर हम उसका स्कोर को एक प्रोफाइल पर प्लॉट करते हैं। क्या वो पहले फैक्टर्स पर हाई वाली कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड वाले फैक्टर पर लो वाली कैटेगरी में आ रहा है, या बीच वाली कैटेगरी में आ रहा है, एवरेज स्कोर आ रहा है उसका। तो हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे उस 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के स्कोर को। फिर हमारे सामने एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का
पूरा का पूरा प्रोफाइल सामने आ जाएगा कि वो पर्सनैलिटी कैसी है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो कैसा है। तो 16 पीएफ पर्सनैलिटी जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, क्वेश्चनियर्स है, जिसका हम यूज़ डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं। और इसकी जो टाइम लिमिट थी वो हमने डिस्कस कर ली, कितने टाइम लिमिट्स में हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और कितने फैक्टर्स हैं, कैसे स्कोरिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं जब भी 16 पीएफ को एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स और 16 पीएफ क्वेश्चनियर्स।